Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Gayatri Thakur, a second year BBL LLB student in Symbiosis Law School, Pune. So guys, it's the part 2, and in this video we're gonna talk about the personal interview round for SLAT 2025. I hope the previous video, which was SLAT 2025 CV thing, it was helpful, and now let's do the personal interview rounds का thing. So in this video I will be telling you कि अब क्या होने वाला है, like you know बहुत soon results आ जाएंगे and results के बाद क्या होगा in part 1, and उसके बाद I will also tell you कि interviews कैसे होते हैं and what you have to do and everything. So this video is a very comprehensive video for SLAT 2025 interview round. So don't forget to like, comment and share, and you don't subscribe, so jaldi se do subscribe, and I have so many surprises for you. So subscribe jaldi se. Bye. Okay guys, so many of you have been texting me for CV review, for CV making, for interviews. So I will be taking personal interviews. I will be doing CV review, but I won't be doing CV making. I want you all to make your own CV. I can definitely help you with formatting, with editing, everything, but I want you all to make your CV by yourself, because it's your CV and only you can make it, because you know who you are. So I will be charging a very small amount for that. So if you want my help, so you can contact me kahin bhi, like WhatsApp, Insta, Telegram, anywhere. You can join my Telegram channel. So jo bhi lage, you can just text me, and I will be doing it. I will be starting it like thode time ke baad, not now kyunki abhi you have time. But if you want my help, just text me. I will reply you. थोड़ा टाइम हो लग सकता है, बिकॉज मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, एंड आई एम ऑल्सो रिपीटिंग अगेन कि आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज आई हैव माई इंटर्नशिप, आई हैव माई 100 assignments, I have so many things to do, but I will surely help you all. So text कर देना. And there are many people who think that there is VAT, that is the written ability test. Guys, please check the official website. You don't have any written test. In the year 2024 उन्होंने बंद कर दिया था, so you don't have the written ability test. Please मुझसे मत पूछना कि ऐसे कैसे लिखते हैं, because मैंने भी नहीं लिखे थे. You don't even have. So now all you should do is make your CV, prepare अच्छे से, like do everything, and trust me, if you score good marks in SLAT, and if your CV is decent, and if your interview goes well, हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा. लाइक इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है. दे डोंट आस्क यू लाइक यू नो वेरी रैंडम क्वेश्चंस, एंड अगर वो पूछ भी लेते हैं तो यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस. पैनिक नहीं करना रहता है उस टाइम. यू जस्ट यू जस्ट हैव टू, you can make your own answers, or you can just tell them कि whatever वो चीज़ बाद में अपन करेंगे. when जब मैं पर्सनल इंटरव्यू लूँगी, तब आई कैन टेल यू लाइक अच्छे से कि कभी कभी when they ask you questions और नहीं आते तो क्या कर सकते हैं. तो दैट इज़ द बात की थिंग. तो अभी लेट्स टॉक अबाउट ओनली पर्सनल इंटरव्यू कि अभी क्या करना है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजल्ट आने के बाद क्या होगा. ओके, so the thing is, you will soon get your results, I hope soon. And उसके बाद if you clear the cutoff of the respective campus, they're gonna send you call letters. Call letters are basically the mails. They're gonna send you that congratulations, you have been selected for the personal interview round. So that is the call letter. That is very important. अगर वो नहीं आता है, that means you're not selected in that particular campus for the personal interview. सो रिजल्ट के लाइक अराउंड 3-4 days में कॉल लेटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड कॉल लेटर्स कैसे आते हैं? इट्स लाइक इफ़ यू क्लियर द कट ऑफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल in our year the cutoff was around, for Symbiosis Pune, the cutoff was around 38. So the people who scored more than 38, उनको कॉल लेटर्स आए थे फ्रॉम पुणे. आई डोंट नो इस ईयर का क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है. एंड दिस कट ऑफ डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर. अगर इस बार का पेपर इजी था एंड पीपल हैव स्कोर्ड लाइक अराउंड 55 अराउंड, देन कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है. सो अभी कुछ नहीं बोल सकता है. लाइक मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आई गॉट दिस स्कोर, तो मेरा होगा कि नहीं होगा.
ब्रो अभी किसी को नहीं पता कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है. ओके, सो वंस यू गेट योर पर्सनल इंटरव्यू का कॉल लेटर, then you have to book slots. Now what is the slot? Slot is a process in which you select when you want your personal interview to happen. Like if I want my personal interview should be between 9 to 10, so you have to select that slot. Now the thing is, जब पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बहुत जल्दी ही वो स्लॉट स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत जल्दी जो मॉर्निंग वाले स्लॉट्स होता है वो भर जाते हैं. सो जैसे रिजल्ट आए, जैसे ही कॉल लेटर्स आए, मेक श्योर यू जस्ट बुक द स्लॉट. जैसे स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मेक श्योर यू डू इट. एंड व्हाट आई से इज book the morning, the first, take the first slot. That should be your priority, I think so. And please don't take the last slot or the last day last slot. No, you have to try to take slots on the starting days. Like what I think that you should do is take the first 3 days or the last, I won't take the last 3 days, but take the first 3 days. And if you don't get the first 3 days, take the morning slot. It is very important to have a morning slot because afternoon ke baad the professors are thoda tired, and what if they don't take your interviews अच्छे से and things go crazy ऐसा. So रिस्क नहीं लेना चाहिए, एंड आई विल से टेक द मॉर्निंग स्लॉट प्लीज़. एंड if you get the chance to have like the first 3 days का slot, please take the first 3 day का slot. ठीक है, सारे कैंपस लाइक पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, चारों का अलग अलग यू हैव टू सिलेक्ट. सो मेक श्योर कि कोई क्लैश ना हो. अगर क्लैश हो जाएगा तो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू. लाइक फॉर एग्जाम्पल, I gave interviews for all the 4 campuses, gave interview for like continue 4 days so that एक भी दिन clash ना हो. And the thing was, पहले मैंने नागपुर रखा था, then हैदराबाद, then नोएडा, then पुणे, because my priority was SLS पुणे. तो the Nagpur Hyderabad was kind of a mock interview for me, and it actually helped me. So if you are also planning to give ऐसा कुछ, तो make sure keep the Pune on the last day. Okay, so if I summarize this personal interview वाला जो भी thing मैंने बोला, first is that book your slot as soon as possible. It is very important for you to book your slot as soon as possible because भर जाते हैं. ठीक है. And the second thing is कोई भी टाइम क्लैश नहीं करना चाहिए. प्लीज़ 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 मेक श्योर कि एक दिन में सिर्फ एक ही इंटरव्यू हो. ऐसा मैंने किया था क्योंकि डिले भी होते हैं, तो व्हाट इफ़ 2 टाइम क्लैश हो जाएं एंड ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़. सो एक दिन में एक ही इंटरव्यू होना चाहिए. एंड व्हाट यू शुड डू इज़ टेक फर्स्ट नागपुर, देन नागपुर, हैदराबाद, नोएडा, पुणे, ऐसे सीक्वेंस में रखना, सो दैट यू कैन टेक these first Noida, Nagpur, Hyderabad wala thing as a pure practice mock interviews. Okay, so now let's talk about interviews. So the first thing is make sure you have a laptop, or even if you are giving it by phone, make sure कैमरा अच्छे से वर्क करता है, make sure माइक अच्छे से वर्क करता है. Try to give it from the laptop because वो ज़्यादा easy रहेगा and थोड़ा convenient रहेगा. फ़ोन में थोड़ा सा थोड़ा chaotic हो जाता है, but try to do it लैपटॉप में ही. कैमरा दे विल आस्क यू टू स्विच इट ऑन, तो यू हैव टू डू इट. तो मेक श्योर वर्क करता हो. एंड माइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली अगर माइक वर्क नहीं करेगा तो चीज़ें ऐसे ख़राब हो जाएगी, लाइक अच्छी जाती जाती भी ख़राब हो जाएगी. तो मेक श्योर ये 2 चीज़ अच्छी चले. एंड ऑल्सो द थिंग इज़, दिस इज़ व्हाट आई डिड व्हेन यू एंटर इनटू दैट जूम और मीट और जो भी चलता है लाइक उस टाइम. ठीक है, जो भी रहेगा. तो थिंग इज़ 2 टाइम होता है. लाइक फर्स्ट यू एंटर इन अ कॉमन रूम एंड देन यू गो टू द मेन रूम. ओके, सो फर्स्ट व्हेन यू एंटर इनटू द कॉमन रूम देयर विल बी 1 पर्सन जो SLS का होगा. जस्ट गो एंड स्विच ऑन योर कैमरा एंड जस्ट आस्क दैट पर्सन कि आप विजिबल हो या नहीं हो. एंड ऑल्सो आस्क कि मेरा वॉइस अच्छे से आ रही है नहीं आ रही है. आस्क अबाउट द कनेक्शन, आस्क अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि वो सेम थिंग ही रहता है ना. क्योंकि लाइक ऑब्वियसली 5 मिनट में चीज़ें चेंज नहीं हो जाएगी. तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओ माई माइक इज़ वर्किंग, माई कैमरा इज़ वर्किंग. और अगर नहीं भी कर रहा होगा ना तो यू विल हैव उतना बीच का टाइम कि कि टू स्विच टू डिफरेंट डिवाइस और समथिंग लाइक दैट.
तो मेक श्योर यू डू दैट थिंग, और बहुत हेल्प करेगा, लाइक कभी प्रॉब्लम ना हो, बट अगर हो तो जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगी. Now talking about the place where you have to sit and give your interview. It should be something like this, जैसा मेरा है पीछे. When I gave my interview, it was something ऐसा ही. My room was different, but पीछे ऐसी चीज़ें दिख रही थी. And वॉइस किसी की नहीं आनी चाहिए. बैकग्राउंड शुड बी क्लियर, लाइक क्लियर इन द सेंस कि बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए. एंड यू शुड ट्राई कि यू आर सिटिंग ऐसे ब्लैंक, what do we call it, wall के side. Like if I will tell you it, okay, so I don't have any place जहाँ पे मेरे पास ऐसे plain सा background हो. तो मैं तो ऐसी बैठी थी. एंड क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पीछे किसी की वॉइस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. एंड मेक श्योर कि बैकग्राउंड में कोई चलता फिरता नहीं घूमता रहा है. मेक श्योर यू आर सिटिंग इन योर कम्फर्ट प्लेस, not on your bed but on your study table. This is my study table. I was sitting here only. And because मैंने यहाँ पे ही पढ़ा है, मैंने यहाँ पे ही अपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो आई फेल्ट लाइक थोड़ा कंफर्टेबल. सो मेक श्योर यू फाइंड दैट प्लेस जो यू फील इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द इंटरव्यूज़. एंड जल्दी से डिसाइड कर लो, सो दैट यू कैन जस्ट सिट एंड गिव इंटरव्यूज़. यू कैन ऑल्सो गिव माई मॉक इंटरव्यूज़ if you want. You can. Now let's talk about the most important thing is, what do you have to wear? Wear something formal and try to wear something black and white में ही. It look good, it look presentable. Please look presentable, it's very important, because अगर presentable नहीं दिखोगे तो it will give them an impression that you are not a sincere person. And so why should they take you? Like even if your CV is good but you don't look presentable, you look थोड़ा ऐसे shabby type का, तो why would they actually take you? तो make sure you look presentable, make sure your hairs are proper, make sure your your formals are ironed अच्छे से. And बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है दैट विल एक्चुअली क्रिएट अ इम्पैक्ट. सो मेक श्योर एवरीथिंग इज़ नाइस. ऑल्सो अगर ब्लेजर नहीं होगा तो भी इट्स फाइन. मैंने भी नहीं पहना था, तो इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू वेयर ब्लेजर, बट मेक श्योर जो भी पहनो इज़ डिसेंट, इज़ नॉर्मल, इज़ प्रेजेंटेबल एंड इट्स क्लीन. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंटरव्यू में क्या क्या हो सकता है एंड व्हाट क्वेश्चंस यू are expected to prepare, or like something like that. Okay, so the first thing is, obviously you can't prepare like everything. Okay, इतना भी time नहीं है, and you also have like other things to do. So the first thing is CV में जो लिखा है ना, make sure you know that. Like you should know कि CV में क्या क्या लिखा है, each and every word. इसके लिए I'm not helping you with CV making, because I want you to write your own CV by yourself, so that you know कि उसमें क्या लिखा है. क्योंकि they might ask you questions कि you have this in your CV, so tell about this. अगर मैं बना दूँगी आपका CV, so हो सकता है मैं कुछ लिख दूँ and you're not aware of it, and वो कुछ पूछ ले, and then you're gonna blame anyone, not me. But hope you understand. I can surely do the CV review वाला thing. I will. सो CV में जो भी लिखा है प्लीज़ पढ़ लेना, एंड उसके बारे में भी लाइक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना कि अगर जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, अगर MUNs का मेंशन कर रहे हो तो यू शुड नो अबाउट UN, यू शुड नो अबाउट UN की कमिटीज़, यू शुड नो अबाउट मेंबर्स ऑफ UN. कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है. एंड कभी कभी वो बहुत अजीब से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इट्स ओके. आई कैन टेल यू लाइक in my Noida interview, they asked me about my introduction, and in my introduction I was like, I'm from Indore. So the professor was like, oh, tell me about Indore, why is Indore so special? So ऐसा छोटी छोटी चीज़ें भी होती है, and they were like, tell me something that makes Indore better than the other cities. So ऐसे बहुत छोटे छोटे minor questions रहते हैं that you should prepare. Actually, you should prepare. And if you want questions of the last 2 years, I have a combined question का PDF of each campus. So जब call letters आ जाए उसके बाद you can buy that from me. I will charge a very small amount,
बट दोज विल एक्चुअली हेल्प यू टू फिगर आउट कि क्या पूछ सकते हैं, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू कि चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि दे आर एक्चुअली हेल्पफुल. You should buy it, I will say, not for my own benefit but for your own benefit. You should buy it, and it's not that costly. Now the most basic questions कि ये तो पूछते ही पूछते हैं, लाइक अगर ये नहीं पूछा तो इंटरव्यू तो ऐसा लगता है कि खाली. ये सो नाउ बहुत 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 बेसिक क्वेश्चंस कि ये तो पूछते ही पूछते हैं, लाइक पूछेंगे ही पूछेंगे, एंड ये तो प्रिपेयर कर ही लेना, लाइक अभी से कर लो, सो दैट डे पे एवरीथिंग. दैट इज़ tell me about yourself, why law as a career, why SLS, describe anything जो भी CV में mention होगा, and they might ask you your weakness, your strength or your hobbies, anything they might ask you, and वो उस पर भी questions पूछ सकते हैं. तो मेक श्योर कि वो वाला चीज़ तो अभी से प्रिपेयर कर ही लेना, क्योंकि ये तो पूछते ही पूछते हैं, लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंट्रोडक्शन ना पूछें. एंड अगर इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, लाइक ये भी हो सकता है कि इंट्रोडक्शन ना पूछे तो नर्वस मत हो जाना कि वो ये तो मुझसे पूछा ही नहीं और कुछ और पूछने लगे, तो इट्स ओके. बट वैसे वो पूछ लेते हैं तो पूछ लेंगे. उसके बाद लाइक फर्स्ट 2 थिंग्स आर डन. दैट इज़ द CV वाला थिंग कि CV में जो भी लिखा है वो पूछ सकते हैं, एंड सेकेंड इज़ अबाउट योर सेल्फ, वाई लॉ, वो सब. एंड द थर्ड थिंग इज़ GK. उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं. सो मेक श्योर यू नो द करेंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, कि वैसे मैंने दिस इज़ वेरी वेग की ऐसा, बट द थिंग इज़ करेंट अफेयर्स तो पढ़ ही लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं. एंड लॉ के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो पढ़ा ही होगा. लाइक मेरे से पूछा था टेल मी अबाउट रिट्स, तो दिस तो यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड मुझसे लीगल मैगजीन पूछा था, या इन SLS नोएडा. आई रिमेंबर SLS नोएडा का बहुत अच्छे से, बिकॉज अ फ्यू रीजन्स. सो द थिंग इज उन्होंने मुझसे पूछा था अबाउट लीगल मैगजीन. तो मेक श्योर यू नो ऐसे बेसिक थिंग्स, एंड कभी कभी होगा कि नहीं याद आएगा. दे विल हेल्प यू, लाइक वो खुद बता देते हैं कि ओ ऐसा ऐसा. दे माइट हेल्प यू ऐसे पूरे उसमें, दे माइट हेल्प यू. हो सकता है कि कोई रूट से आ जाए एंड दे डोंट, तो इट्स ओके. एंड ऑल्सो मेक श्योर यू नो द हिस्ट्री, लाइक वेरी बेसिक टाइप ऑफ, लाइक कि केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, और मे बी लाइक दे माइट गिव यू सम इंग्लिश का वर्ड एंड माइट आस्क यू फॉर द सिनोनिम. ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो इट्स अप टू देम, कुछ भी पूछ सकते हैं. वो ये भी पूछ सकते हैं कि ओ टेल मी अबाउट मून, कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके गाइस, सो लास्ट थिंग, अगर लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चंस चाहिए तो जस्ट DM मी. आई एम टेलिंग यू बहुत हेल्पफुल हैं वो क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उससे यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू वांट मी टू टेक योर पर्सनल इंटरव्यूज़, you can DM me. I will soon share the details about it. And the third thing is that interviews are not that difficult. इतनी टेंशन मत लेना, हो जाता है. एंड CV वाला थिंग, CV प्लीज़ अच्छे से बनाना. एंड प्लीज़ मुझसे ये मत पूछना कि ओ आई डोंट हैव एनी अचीवमेंट्स, तो मैं क्या करूँ. तो मुझे भी नहीं पता क्या कर सकते हैं. मैंने लास्ट वाले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं. बट द थिंग इज़, इफ़ यू आर सेइंग कि आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनीथिंग, सो ब्रो आई can't do anything उस पर भी. But I can surely do your CV review, and I can help you with CV, like what I can help you. I can help you only with CV review. And so bye. Don't forget to like, comment and share.